Namaste, Principal Sir of DAV Public School Dhari and all my dear students of class 9. Now I am going to explain a poem from the book Beehive. This one is the fifth poem. The name of the poem is A Legend of the Northland and the poetess is Phoebe Carey. Poetess Phoebe Carey was born on 4th September 1822 in United States and was died on 31st July 1871 in United States. The poem is a ballad. A ballad is a song narrating a short story into a short stanzas, and here are 4 lines of each stanzas, and there are 16 stanzas in this poem. So what is the summary of the poem? The poem is a legend. Legend means the ancient story, the story which comes from generation to generation. जो वंश परंपरा से पहले से प्राचीन काल से जो आए हैं वो कहानी है. So here is of Saint Peter, one saint, and one saint, what is the work of the saint? To preach the religious things, sermons to the people was his work. And once he was traveling through the world preaching to the people, and once he came to a young lady, and that lady was making bread or roti, and he asked bread, and the woman was so miser. She wanted to give him a very meager quantity, a very small quantity of amount of bread, and when she was trying to give the amount of bread, and she thought it was too big, and he made a separate loaf for the bread. And when she was going to give, and that and she also thought it was a big one. Then Saint Peter became very much angry, and Saint Peter thought the lady is not fit to being a human form. But he then became very much angry, and he gave her curse, abhishap diya. And what was the curse? He made the lady a woodpecker. The woodpecker, and what was the work of the woodpecker? To cut the wood during the whole day and creating a hole, boring day after day. So this one is the result of the lady's miserliness. Now, what is the moral lesson of the poem, or what is the message of the poem? As human beings, we should have positive qualities like affection, love, fellow feeling, sympathy, generosity, and a sense of sharing. As human beings, आदमी है, हम लोग आदमी है, तो आदमी का क्या होना चाहिए? We should have positive qualities. सकारात्मक क्वालिटी होना चाहिए, सकारात्मक गुण होना चाहिए, like affection, स्नेह होना चाहिए, love, प्रेम, fellow feeling, सहानुभूति होना चाहिए, sympathy, दया होना चाहिए, generosity and उदारता होना चाहिए, and a sense of sharing. और क्या होना चाहिए? सेंस ऑफ शेयरिंग मतलब बांटना चाहिए, शेयर करना चाहिए हर चीज. द पोएटेस ऑल्सो ब्रिंग्स फोर्थ द आइडिया दैट, तो पोएटेस कवयित्री क्या करती है? प्रकट करती है आइडिया. क्या आइडिया? दैट पीपल विथ नेगेटिव इनह्यूमन वैल्यूज लाइक सेल्फिशनेस, ग्रीड एंड क्रुएल्टी आर अल्टीमेटली पनिश्ड. ब्रिंग्स फोर्थ द आइडिया, तो कवयित्री आइडिया प्रकट करती है क्या? दैट पीपल विथ नेगेटिव जो नकारात्मक आइडिया है, इनह्यूमन वैल्यूज
और जो वैल्यू गुण क्वालिटी जो अमानविक है, लाइक सेल्फिशनेस जो स्वार्थी है, ग्रीड जो लालची है, एंड क्रुएल्टी जो क्रूरता जिसमें है, और अल्टीमेटली पनिश्ड वो अंत में दंडित हो जाते हैं। We should not be greedy, हम लोग को लालची नहीं होना है। We must help the poor and hungry people, तो हम लोग को अवश्य ही हेल्प करना चाहिए, सहायता करना चाहिए गरीब और भूखे आदमी को। The blessings of human life with food, blessings आशीर्वाद मिलेगा human life में, जीवन में, with food, shelter and warmth have to be earned through a good moral conduct। तो फूड खाना, आश्रय और वार्मथ जो उष्णता, ये सब अर्जित कैसे क्या करना चाहिए? थ्रू अ गुड मोरल कंडक्ट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूब, बहुत ही बढ़िया और मोरल कंडक्ट, जो अपना नैतिकता और नैतिकता के साथ जो व्यवहार है, ये व्यवहार करके ये सब चीज को अर्जित करना चाहिए। दिस पोएम इज कॉल्ड अ लीजेंड, तो ये कविता एक लीजेंड है, पौराणिक कहानी है। बिकॉज इट प्रीचेस जेनरसिटी, ये सिखाते हैं उदारता, टुवर्ड्स फेलो बीइंग्स, जो सामने आदमी रहेंगे वो आदमी के प्रति उदारता दिखाना चाहिए। वी शुड शेयर आवर थिंग्स विथ अदर्स, तो हम लोग को जो चीज रहता है उसको दूसरे को साथ अच्छी तरह से बांटना चाहिए। नाउ वी विल गो थ्रू द पोएम अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड बाय Poeme Kelly. So this one is a ballad. So ballad is a song narrating a story in short stanzas. So 16 stanzas are there in the poem. This poem narrates the legend of an old lady. Legend पौराणिक कहानी जो वंश परंपरा में आते हैं, तो इस प्रकार एक कहानी वर्णन करती है एक लेडी का, औरत का, who answered Saint Peter because of her greed. तो एंगर्ड सेंट पीटर, तो सेंट पीटर को गुस्सा क्रिएट किए बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, अपना जो लालची है, लालची प्रदर्शन करवा के तो सेंट पीटर को गुस्सा दिलवाए। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्री, अवे अवे दूर दूर, अवे दूर 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 का, दूर दूर में क्या है? इन द नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड है। A forested northland means northland, a forested subtropical region of on New Zealand। तो न्यूजीलैंड का एक सबट्रॉपिकल जगह है, एरिया है। A forested subtropical region on New Zealand, North Island, framed by the Pacific Ocean and Tasman Sea। तो तस्मान सी और पैसिफिक ओशन का बीच में जो जगह है, और न्यूजीलैंड और नॉर्थलैंड, ये सब जगह में ये नॉर्थलैंड का पोजीशन है। Where the hours of the day are few, तो उसमें जो दिन का समय और रात का समय में, दिन का समय वो ऐसा पोजीशन है धरती पे, तो दिन का समय बहुत ही कम है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और खास करके ठंडा में उसमें रात बहुत ही बड़ा लंबा होता है। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, तो जिसमें इतना लंबा रात्रि है, तो जिसमें सो नहीं पाते हैं वो लोग। Where they harness the swift reindeer, where they harness means to tie the reindeers with a rope to a sledge so that it can be used for transportation, घोड़े के साथ harness। Where they harness the swift, तो वो ठंडे जगह में घोड़े के यूज होते हैं, उपयोग करते हैं आदमी, घोड़े को काम में लगाते हैं। द स्विफ्ट शीघ्रगामी रेंडियर, हिरन, और बारहसिंगा जो है उसको रेंडियर कहते हैं। स्विफ्ट मीन्स समथिंग व्हिच रन्स वेरी फास्ट, जो शीघ्रगामी होते हैं, शीघ्रगामी रेंडियर। टू द स्लेज मीन्स ए व्हीकल और रनर ऑन रनर्स फॉर कन्वेइंग लोड्स और पैसेंजर्स ओवर स्नो और आइस, ऑफन पुल्ड बाय ड्रॉट एनिमल्स। तो बर्फ पर चलने वाली जो गाड़ी है वो उसको स्लेज गाड़ी कहते हैं, बर्फ पर चलने वाली गाड़ी। When it snows, जब उसमें रास्ते में बर्फ गिरता है। And the children look like bear's cubs, और बच्चे लोग को कैसे दिखते हैं? जो बियर भालू का
लड़का या भालू का शावक जैसा दिखता है इन देयर फनी मजेदार फारी क्लोथ्स। फारी मुलायम, फारी मीन्स मेड ऑफ फार, मुलायम वाली बालों वाले, फार से मुलायम बालों वाले क्लोथ्स कपड़ा से, कपड़ा वो लोग पहनते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, तो क्यूरियस मीन्स स्ट्रेंज, अजीब, तो अजीब सा वो लोग कहानी, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, अजीब सा कहानी वो लोग एक है। आई डोंट बिलीव दिट इज ट्रू, लेकिन मैं विश्वास नहीं करते हैं कि ये सही है या गलत है। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, सही या गलत है लेकिन आप एक शिक्षा उसमें से जरूर प्राप्त होंगे। इफ आई टेल द टेल टू यू, अगर वो कहानी आपको हम बताते हैं तो। Once when the good Saint Peter lived, Saint Peter here an apostle of Christ, a disciple of or follower of Jesus Christ, जो जीसस क्राइस्ट का डिसाइपल शिष्य है, फॉलोअर है। तो सेंट पीटर was one of the 12 apostles of Jesus Christ, तो जीसस क्राइस्ट का 12 गो अपोस्टल थे। अपोस्टल मीन्स ईश्वर दूत, ईश्वर ने जो दूत भेजते थे, ये 12 गो अपोस्टल थे। एंड द फर्स्ट लीडर ऑफ द अर्ली चर्च, तो ये है अर्ली चर्च का फर्स्ट लीडर जो सेंट पीटर। तो पीटर वाज क्रूसिफाइड इन रोम अंडर एम्परर नेरो, एम्परर नेरो का समय में ये सेंट पीटर को क्रूसिफाइड किया गया था। लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, तो धरती पे रहते थे। एंड वॉक्ड अबाउट इट, और चलते थे। प्रीचिंग टू गिव अ रिलीजियस टॉक, धर्म उपदेश, और गिविंग सरमन्स, तो जिसमें उपदेश देते थे। जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसे वो करते थे आप सभी जानते हैं। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, तो एक समय चलते फिरते वो एक कुटिया का दरवाजा पर आए। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, जब धरती को परिभ्रमण कर रहे थे। वेयर ए लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स, तो एक छोटी सी महिला क्या कर रही थी, अपना मालपुआ या तो रोटी बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हार्थ, और रोटी बनाते बनाते क्या कर रही थी, सेक रही थी। ऑन द हार्थ मीन्स चूल्हा में, फायर प्लेस, हार्थ मीन्स फायर प्लेस वेयर यू डू कुकिंग, चूल्हा, तो चूल्हा में रोटी को सेक रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, फेंट मीन्स बेहोश हो जाते हैं, फेंट मीन्स टू बी वीक, फेमिस्ट, बेहोश हो जाते हैं कभी कभी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, फास्टिंग मतलब उपवास वो किए हुए थे, तो उपवास में बेहोश हो गए थे। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, तो पूरा दिन का कार्यक्रम पूरा हो गया था। ही आस्क्ड हर, और वो सेंट पीटर उसको मांगे फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, तो जितना रोटी बनाई थी वहां से स्टोर संचय से उसको डिमांड किए। टू गिव हिम अ सिंगल वन, तो जितना बनाए थे उसमें से एक देने के लिए वो रिक्वेस्ट किया। सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक, तो उसको देना है इसलिए वो इतना माइजर थी, बहुत ही कृपण थी, तो वो वेरी लिटिल केक, जितना सा छोटा है केक बनाने प्रयास की। सी मेड ए वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले, और उसको सेकने के बाद रख रही थी। सी लुक्ड एट इट, उसके बाद देखी। एंड थॉट इट सीम्ड, और सोची ये लग रहा है टू लार्ज टू गिव अवे, इतना बड़ा है जो देने लायक नहीं है। Therefore she sneaked another, तो दूसरा वो जिसको सोचे कि देने के लिए बहुत ही बड़ा हो जाएगा तो और छोटा होना चाहिए, इसलिए फिर दूसरा बनाने लगे। वो निट मीन्स टू मेक डॉ फ्रॉम फ्लावर, तो फिर उसको आटा लेके सानने लगे। Therefore she needed another to make dough from flour, तो आटा से दूसरा सानने लगे कि इतना बड़ा हो जाएगा इतने से, तो इससे छोटा देना चाहिए। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और उसको फिर छोटा बनाने प्रयास किए। बट इट लुक्ड, लेकिन ये देखिए व्हेन सी टर्न्ड इट ओवर, जब इसको देने के लिए गए, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो पहले वाला जितना बड़ा था वो ये भी उतना ही बड़ा उनको लगा। So the poem will be divided into two parts of my video, and this one is the first part of my video. So thank you. Have a nice day.